Assalamu alaikum. This is Naeem Tarikiani from Toronto 360 TV channel, and we are starting a new program today, which will be Sports Roundup by USCL. Sports Roundup has been started in such a way that we'll introduce different sports which have been played in Canada and which has been recognized internationally as well. Today in this program, we're going to talk about cricket. Cricket has been widely played not only in South Asia, but in Europe and other subcontinent as well, and other continent, I would say, as well. Cricket is the governing body of cricket is ICC, which has defined rules and which has been widely accepted throughout the world. World Cup is been happening right now. We'll talk about World Cup in our next segment. I just wanted to highlight some of the format of the cricket has been played. Cricket has been played in the 50-over game. Initially, when cricket started, they played for 2 or 3 days, which we call test matches, and different countries and their teams have been playing cricket in that format as well. So now cricket has been much advanced, where we, as I just mentioned, there are 50 overs, 10 overs, and 20-over game, which has been widely played, and which has been on different countries has been playing those games as well. There is some other format of the cricket and other balls of the cricket, and the cricket has been used. Leather ball has been used widely and is being recognized by ICC. There are other alternatives to leather ball, which is being used in Karachi, in Pakistan, and other countries as well, because there are some injuries which usually happen by using leather ball, and when we are playing, and when usually our kids and other players are playing in the street, that's the ball which they don't want to use. So there are some alternatives. The first alternative they started in 1960 was to use rubber ball, but the bounce of the rubber ball on the ceramic and other format was too much that they could be able to handle it. So there is another alternative they came up with to tape around the tennis ball, which was widely being used since 1960 and has been used everywhere in the world wherever cricket has been played. In next segment, we are going to have our guest where we're going to talk about World Cup and different matches have been playing now, and then we'll talk about how World Cup is being progressing so far and who's their favorite team and all. So keep watching Toronto 360, keep watching Sports Roundup by USCL. वेलकम बैक नाजरीन, हमारे पास इस वक्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं हारून असद साहब, और फ़ोन पे आई एम वेरी फॉर्चुनेट कैनेडियन नेशनल प्लेयर जो कैनेडियन नेशनल खेले हुए हैं, अंडर 19 खेले हुए हैं कनाडा की तरफ से, उमर भट्टी साहब। तो हम इन दोनों साहिबान से बात करेंगे रिगार्डिंग वर्ल्ड कप, कि वर्ल्ड कप कैसे चल रहा है, क्या उनकी तासुरात हैं एंड हाउ टू डू दैट। तो पहले मैं हारून भाई के पास आता हूँ। हारून भाई, कैसी तबीयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वाचिंग एंड गुड इवनिंग। तबीयत जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे है बिकॉज ऑफ द वे पाकिस्तान टीम हैज़ बीन परफॉर्मिंग और नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वेल लेट्स सी कि आगे जो है वो तबीयत सही रहती है कि नहीं। तो आप ऑफलाइन मुझे बता रहे थे कि आपका अभी जो है वो ट्रिप लगा था इंग्लैंड का, तो कैसा रहा वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, trip was very good, very phenomenal. I was exposed to a lot of different cultures, a lot of different aspects of the cricket. जो उधर जो cricket का जो vibe है, it is completely different. It is not something that we experience here in Canada. I hope one day we get to experience this in Canada, inshallah. Definitely. But जो watching cricket in an English nation at the home of cricket was something that I cannot define. That's exactly, क्योंकि वो क्रिकेट वहीं से शुरू हुआ है। Absolutely. मतलब लॉर्ड्स को मेरे ख्याल से मक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं। That's how it works out, right? तो that's very good। तो अभी आपसे बात करेंगे। उमर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नहीं भाई, आप सुनाए कैसे हैं? आप सुनाए कैसी तबीयत है? गुड गुड। अच्छा उमर भाई, क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप? जी जी एब्सोल्युटली। ये कैसे हो सकता है कि नहीं फॉलो करें? तो कैसा रहा पाकिस्तान का मैच कल का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का? उसके बारे में जितना कम ही कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अभी तक कायम है 7-0, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी तक तो पाकिस्तान की यानी कि जो एक्सपेक्टेड थी वैसे ही चल रही है। हमें फॉल्स होप काफी होते हैं, लेकिन हमेशा जब भी इंडिया से लूज करते तो जारी बात है डिसअपॉइंटमेंट होती है। एग्जैक्टली।
तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए? अब मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट गेम जब हमारा ये प्रोग्राम लाइव जाएगा तो हो सकता है कि उसके बाद ही फ़ौरन जो है साउथ अफ्रीका के गेम और ऑल, तो क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान को कि क्या करना चाहिए अब साउथ अफ्रीका के गेम में और अगले जो गेम्स आने वाले हैं? आई थिंक अभी तक तो पाकिस्तानी टीम को तो यही नहीं पता कि उनके बेस्ट 11 कौन से हैं, क्योंकि एक दो चेंजेस लाए हैं जो बड़ी परप्लेक्सिंग थी। अब ऑस्ट्रेलिया के गेम्स देख लें कि शादाब को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शाहीन शाह अफरीदी को, और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया है इमाद वसीम को, जिसकी जरूरत नहीं, जो कि यानी कि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड एट प्लेइंग फास्ट बॉलिंग एंड इंडिया इज वेरी गुड एट प्लेइंग स्पिन बॉलिंग। तो ये सिलेक्शन इश्यूज जो है ना, ये समझ नहीं आ रहे कि किस बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा जो डिसीजन बहुत स्ट्रेंज जो था कि टॉस जीत के आपने बॉलिंग की है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दिखा रहे कि आपको अपने बैट्समैन में आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो जो है ना पहले 10 या 12 ओवर जो है ना वो सीम के नेगेट कर सके। ट्रू, मेरे ख्याल से ये वाला डिसीजन तो मिस्ट्री हो गया, ये एवरीबडी वांटेड टू नो कि यार व्हाई डिड वी डू दैट, राइट? तो मेरे ख्याल से वो अब जब सरफराज जब वापस आएंगे तो वही बताएंगे कि यार उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया या व्हाट एवर द रीज़न बिहाइंड इट। तो वर्ल्ड कप ओवरऑल जो टीम्स हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम्स जो हैं वो सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकती हैं? अगर आप देखें अभी 4 टीम्स जो ऑलरेडी टॉप में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड इंडिया, अभी तक तो यही फेवरेट हैं, लेकिन आज बांग्लादेश ने जो है ना वेस्ट इंडीज को काफी कन्विंसिंगली हराया है। जी जी, बिल्कुल। आउट ऑफ ऑल द बॉटम 5-6 टीम्स, आई थिंक बांग्लादेश हैज अ वेरी गुड चांस कि अगर 1-2 अपसेट्स होते हैं और रिजल्ट्स उनकी फेवर में जाते हैं तो दे कुड स्नीक इनटू द फाइनल 4। वेरी गुड। तो आमिर की फॉर्म मेरे ख्याल से वापस आ चुकी है क्योंकि उसने वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया है अभी तक, तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में? मतलब उसको और किस तरीके से वो, मुझे उसकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है अब। हाँ जी, आई थिंक यू नो उसको शायद आई थिंक आमिर लर्न हिज लेसन। उसको ड्रॉप करने के लिए वजह शायद यही थी पहले या वर्ल्ड कप में ना इंक्लूड करने की, कि थोड़ा जो है ना उसको जगाया जाए, क्योंकि शायद हो सकता है वो काफी कंफर्टेबल हो गया और जब से वो आया है ही इज बीन द लीडर। लेकिन पिछले 2 साल से उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, आई मीन ही इज बॉल्ड वेल बट ही वाजंट टेकिंग विकेट्स एज अ लीडर ऑफ द अटैक। आई थिंक वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम, लेकिन अब यू नो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज डूइंग सो वेल एंड यू नो अभी जैसे आपने कहा ही इज द लीडिंग विकेट टेकर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से वहाब रियाज भी जो है ही इज डूइंग वेरी वेल देयर। सो हारून भाई, आप माशाल्लाह थे वहाँ पे, आपने जो है ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, कैसा, हाउ वाज द एनवायरनमेंट देयर? द एनवायरनमेंट वाज इलेक्ट्रिक। और थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ मैच देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कराची में नेशनल स्टेडियम में भी काफ़ी मैचेस देखे। तो एनवायरनमेंट वाज इलेक्ट्रिक। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि रिजल्ट्स जो है वो हमारे फेवर में नहीं आए। देयर वाज अ ह्यूज मिडल ऑर्डर कोलैप्स, और जब मैं वहाँ पे था एवरीवन वाज वेरी अपसेट अबाउट द फैक्ट कि हम इतनी कंसिस्टेंटली क्रिकेट हम खेल रहे हैं, लेकिन सारी मेजॉरिटी ऑफ द डिसमिसल्स वर ऑन द शॉर्ट बॉल। आई मीन बाबर आजम जो है वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, अच्छा खेल रहा था, अच्छी ड्राइव कर रहा था। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के साथ भी हमारा यही हाल जी, वेस्ट इंडीज के साथ तो जो है वो मुशी भाई जो है वो वेस्ट इंडीज के कोच हैं, तो उन्होंने यही कहा सबसे कि भाई अपने बॉलरों से कि भाई जाएं इन पे शॉर्ट बॉल की बारिश कर दें। लेकिन जो मैं ऑस्ट्रेलिया में, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का जब मैंने मैच देखा टॉन्टन में, तो बाबर आजम शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, हसन अली he put up a good show, लेकिन at the end of the day वो भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, थर्ड मैन पे उस्मान ख्वाजा ने उसका कैच लिया, और आई थिंक इमामुल हक भी जो है वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ। तो there was a sense of scaredness, I would say, कि वो लोग डर रहे थे शॉर्ट बॉल से। at the same time it was a poor shot selection। ट्रू। तो उमर भाई, क्या कौन सी टीम फेवरेट है अभी आपकी, क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप के लिए मैं चाहूंगा पाकिस्तानी, वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन है, आई एम गोना से इंडिया so far। Alright. No, that's really, क्योंकि इंडिया ने मेरे ख्याल से प्रूव किया है, and the way they have played so far, उनके जो बॉलर्स अब जो वो लेकर आए हैं, it's pretty remarkable, right? So they have proved it, very good। They have 3 or 4 attacking bowlers, यानी कि उनके दोनों स्पिनर्स आप देख लें, प्लस बुमराह, शमी, मोहम्मद शमी को अभी तक मौका नहीं मिला खेलने का, but he has been in good form lately। तो I mean India has all the bases covered। Good। So I think India will इंग्लैंड से मेरे थोड़ा ज़्यादा आगे फेवरेट है इंडिया। Alright। हारून भाई, आप क्या कहते हैं? I would definitely think कि इंडिया और इंग्लैंड को फाइनल खेलना चाहिए। I would definitely say इंडिया और इंग्लैंड को फाइनल खेलना चाहिए, बिकॉज
ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर गुड, बट जब मैंने एक्चुअली आई हैड अ प्रिविलेज ऑफ वाचिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया गेम एज वेल एट द ओवल. तो ये इत्तेफाक हुआ कि हम लोग उसी दिन लैंड हुए, वी गॉट द टिकट और हम लोग जो है वो चले गए. तो दे सीम टू कोलैप्स अंडर प्रेशर. अच्छा. और उसके अलावा जो है जो न्यूजीलैंड की टीम है, आई डोंट थिंक दे हैव बीन पुट थ्रू द टेस्ट प्रॉपरली. विल सी जब वो बड़ी टीमों के साथ मैच खेलेंगे, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और या इंग्लैंड के वगैरह के साथ मैच खेलेंगे, विल सी हाउ दे टर्न आउट टू बी. लेकिन एट द राइट नाउ आई थिंक आई एग्री विद भट्टी भाई दैट इंडिया हैज ऑल द बेसिस कवर्ड. मेरे ख्याल से जो कल हमने गेम देखा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, काफी इंडियन फैंस थे वहाँ पे. वहाँ पे काफी इंडियन फैंस थे. जब मैं ओवल में था तो वहाँ पर जो ओवल ग्राउंड था वो भरा हुआ था. There were 1 or 2 kangaroos here and there, but other than that सारे जो थे वो इंडियन फैंस थे. और उनके 5 में से जो, अगर आप हार्दिक पांड्या को हटा भी दें, तो उनके 5 में से जो 4 बॉलर हैं, दे आर स्ट्राइक बॉलर्स, दे आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, एंड दे आर इन टॉप 10 ICC. चहाल है एक, और दूसरे बंदे का मेरे दिमाग से नाम निकल गया. एक चहाल, भुवनेश्वर, बुमराह, और उनका आई थिंक एक और स्पिनर है. दे हैव बीन वेरी गुड और दे आर लीडिंग विकेट टेकर्स. दे आर इन टॉप 10 ICC. मेरे ख्याल से इंडिया ने काफी अपना जो है वो बॉलिंग अटैक पे काफी काम किया, क्योंकि यूजुअली इंडिया की टीम जो है, अगर हम देखते हैं, they're known for batting. They're known for batting. They're known for good chaser. Exactly. So now they have worked a lot on their bowling side as well, which is good. Which is good. So thank you very much, Umar bhai. Thank you so very much for being part of this show, and definitely we'll inshallah chat with you in the future as well. My pleasure. Thank you, sir. So we are moving to our segment 3 inshallah. So हम जो है यहाँ पर EOSCL के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, हमारे पास इंशाल्लाह EOSCL की मैनेजमेंट के कुछ लोग यहाँ पे बैठेंगे. हम उनसे बात करेंगे EOSCL के हवाले से और कैसे EOSCL स्टार्ट हुई और किस तरीके से हम उसको आगे की जानिब देख रहे हैं. कीप वॉचिंग टोरंटो 360, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वेलकम बैक.
हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान हैं USCL के, USCL स्पोर्ट्स राउंड अप जो प्रोग्राम का नाम है उसके हवाले से कुछ मेहमान हमने USCL के मैनेजमेंट से बुलाए हैं, उनसे हम बात करते हैं USCL के हवाले से कि USCL है क्या। हमारे साथ हैं अजहर अकबरी, हारून असद, आप इनको पहले सेगमेंट में दे ही चुके हैं, लेकिन ये USCL का भी मेरे ख्याल से पार्ट हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मिराजुद्दीन मुबश्शिर, ये भी USCL से काफ़ी मुंसलिक हैं और हम इनसे बात करते हैं। मिराज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नहीं भाई, आप सुनाए क्या? अल्लाह का शुक्र है। तो USCL क्या है? USCL क्या है? USCL इवेंट ओंटारियो सॉफ्टबॉल क्रिकेट लीग, फुल नेम इसका ये है। और USCL जो है वो बेसिकली टोरंटो में एक लीग हमने स्टार्ट की थी, जो कि हमें पब्लिक की तरफ से ही डिमांड आई थी कि भाई अब कुछ थोड़ा सा अच्छा आप अच्छे लेवल पे, क्योंकि हमने 2015 में हमने एक प्रोग्राम किया था, एक क्रिकेट का मैच हुआ था बेस्ट ऑफ 3 का, उसमें 14 और 15 अगस्त जो है वो वीकेंड पर आई थी। अच्छा ठीक है, तो कुछ हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी फ्रेंड्स, हम लोगों ने मिलकर चलो हम अपना गेम खेलते हैं एज ए इंडिया और पाकिस्तान। ज़बरदस्त। तो उसमें हमारे पास कुछ बंदों की शॉर्टेज हुई, जिसको हमने फेसबुक पे डाला, और जो फीडबैक आया वो ऐसा हो गया था कि शायद हमें बैठना पड़े और वही लोग खेलेंगे। फिर आपने सोचा उसको जो है वो, तो फिर जिस तरीके से फिर वो 3 मैचेस हुए, 3 मैचेस होने के बाद पब्लिक ने फिर ये बोला कि भाई आप इसको आप कंटिन्यू करें, अच्छा इसको दूसरे, और तो फिर हमने सोचा उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं, और USCL हमने स्टार्ट किया 2016 में। उसमें कोई टीम, कंप्लीट टीम नहीं थी, सारे इंडिविजुअल्स थे उसमें, और उसमें ट्रायल लिए हमने, और उसके बाद जो है बॉलर्स को हमने डिवाइड किया, बैट्समैन को बैलेंस आउट की बैलेंस की टीमें सारी 8 की 8 टीमें, और वो हमने कंप्लीट किया। 2017 में जो है वो 12 टीमें थी माशाल्लाह से, और 2018 में भी जो है वो अराउंड लाइक 17 टीम्स थी, और इस साल भी 17 टीम्स हैं। तो सॉफ्ट बॉल क्या मतलब, अभी जो इंट्रो में हमने बात की, एक टेप बॉल का जो एक पाकिस्तान में ट्रेंड चला था 1960s में, जिसमें कुछ फॉर्मेट डिफरेंट उन्होंने यूज़ किए थे बॉल्स के एंड ऑल, तो यहाँ पे टेप बॉल का है क्रेज इतना? वैसे नहीं भाई, शुरू में अंदाज़ा नहीं था, मगर बाद में पता चला कि यहाँ पे भी जो है वो इस तरह के लोग बहुत हैं जो कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए खेलना चाहते हैं, जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट, कि मैं 5 दिन काम करने के बाद मंडे टू फ्राइडे 9 से 5, फिर ग्रॉसरीज, लॉन्ड्री, सारे काम वाम करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मैं ऐसे निकालूं कि मैं उसमें फ्रेश हो जाऊं। बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए, बिल्कुल, कोई एक्टिविटी रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो समर हमारे पास थोड़ा सा होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि एज मच एज मैचेस जो है वो हम खेलें और अरेंज करें। हमें उसमें आधी ज़्यादा बारिशें होती हैं ना, राइट, समर में। कनाडा में आप क्या कर सकते हैं। तो हारून भाई, आप भी खेलते हैं USCL में? नहीं सर, आई एक्चुअली हैव अ टफ जॉब। अच्छा। एंड दैट इज बीइंग एन अंपायर। ओह माशाल्लाह। और बड़ी प्रेशर वाली जॉब है सर ये। या ऑफ कोर्स, आई मीन ऐसा लगता नहीं है, लोगों को लगता है कि अंपायर उधर बस खड़ा हुआ है, बट with every ball comes with multiple decisions. Oh, exactly. क्योंकि आपको नो बॉल देखनी है, फिर एज देखनी है, फिर वाइड देखनी है, फिर अगर बैट्समैन भाग रहा था आपको रन देखना है कि वो शॉट ले रहा है कि नहीं। एंड बिलीव इट और नॉट, जो लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे ICC के लॉज लेकर आते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन टॉप ऑफ आवर गेम्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सो फार। कि अगर वो कोई लॉ लेकर आते हैं जो हमने नहीं सुना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो कि यार वो किस वजह से अप्लाई होता है और किस तरह से बनता है। सो इट्स अ टफ जॉब ओवरऑल, बट आई एंजॉय इट। तो एम्पायरिंग में जो मुश्किल डिसीजन जो आपके मेरे ख्याल से होते हैं, वो वाइड को लेके होते हैं, नो बॉल को लेके होते हैं, वो क्या मतलब मुश्किल? क्योंकि टेप बॉल में, मुबश्शिर भाई आप मेरी बात करेक्ट कीजिएगा, उसमें LBW का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, राइट? नहीं, बिल्कुल उसमें LBW तो जो मेजर जो यूजुअली जो एम्पायर का जो मुश्किल होती है डिसीजन देने में, वो LBW होता है। तो अदर देन दैट वो क्या मुश्किल डिसीजन होते हैं जो आप लेते हैं? द मेन डिसीजन इज द एज। उसके लिए हमें आई वुड से एज एन एम्पायर, मुझे आई ट्राई माई बेस्ट टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट, क्योंकि मैं हार्ड बॉल पर्सनली खेलता हूँ। अच्छा, आप खेलते हैं? मैं हार्ड बॉल पर्सनली खेलता हूँ। तो हार्ड बॉल में अगर एज लगती है तो इट्स इवन, अगर फेदर एज भी होती है तो अंपायर सुन लेता है, क्योंकि अगर मैं रनअप पे खड़ा होता हूँ और मेरा प्लेयर सामने मेरा बैट्समैन आउट होता है तो मुझे पता होता है कि इट्स अ फेदर एज। लेकिन टेनिस बॉल जो है, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। तो हमें ये देखना होता है कि बॉल डिफ्लेक्ट हुई है या नहीं हुई, बॉल अगर जो है वो बैट के पास से गुजरी है तो उस वक्त साउंड आई है या बाद में साउंड आई है।
तो काफी टेक्निकल काम है सर। there are multiple factors. I mean, tennis ball की umpiring it's actually a little harder as compared to the hard ball umpiring. क्योंकि हार्ड बॉल में अगर कुछ होता है तो आपको यू नो इट राइट अवे. इवन अगर हार्ड बॉल में LBW होता है तो बैट एंड पैड की भी एक दो साउंड होती है, आपको पता चल जाता है. बट टेनिस बॉल इट्स कंपैरेटिवली डिफरेंट. इट्स मच मोर चैलेंजिंग एंड इट्स गेटिंग चैलेंजिंग एवरी ईयर. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन ऑन टॉप ऑफ इट. गुड. तो ICC ने अभी तक मेरे ख्याल से टेप टेनिस को या जो जिस फॉर्मेट को जो यूज़ कर रहे हैं उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया है. तो आप क्या समझते हैं जो इतना कॉन्सेप्ट जो अब ग्रो हो रहा है, और आपने अभी कहा कि काफ़ी लोग जो है उसको लाइक कर रहे हैं और काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं, राइट? तो कुछ होना चाहिए इस तरह का कि वो जो है वो प्रॉपर्ली रिकग्नाइज हो, ये वाला जो फॉर्मेट भी. डू यू थिंक अबाउट? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. अच्छा. I think there is still a lot of work to do before ICC recognizes a tape ball cricket. क्योंकि ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ये सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी है. It hasn't been recognized properly in Europe or in other English cricketing countries. But सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत बड़ी है. जो बहुत सारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, वसीम, वकार, यूसुफ, इंजमाम, ये सारे जो है वो टेप बॉल क्रिकेट से निकल कर आए हैं. मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर जो है वो भी टेप बॉल की प्रोडक्शन है. और it's not widely recognized, but it's very widely played in subcontinent. Right, so right. there is still a lot of work that needs to be done before ICC recognizes it. But we're not there yet, but we're moving towards the right direction. चलिए इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अगले 10-15 सालों में ये भी जो है वो एक नया फॉर्मेट आ जाएगा. Hopefully. गुड. अजहर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. तो अजहर भाई आपका जो रोल है USCL में वो मेरे ख्याल से टेक्निकल की तरफ ज़्यादा है, राइट? तो आप जो नॉट ओनली USCL, मेरे ख्याल से जो ऑफ द एयर हमारी बात हो रही थी, इवन ओंटारियो को आप टेक्निकली काफ़ी पीछे से सपोर्ट करते हैं ऑल दैट. तो क्या आप जो है वो टेक्निकल वेबसाइट्स किस तरीके से आप लेके चलते हो? अच्छा नहीं भाई, इसमें यह है कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है इवेंट ओंटारियो, तो हमारा जो मेन जो बिज़नेस है वो इवेंट मैनेजमेंट है. तो उसका जो पोर्टल हम लोग मेंटेन करते हैं जिसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट का काम है. तो हमारा कस्टम पोर्टल है जिसमें हमने कस्टम डेवलपमेंट करवाई, जिसमें हम कंटेंट जो है वो सीज़न एवरी सीज़न हम अपडेट करते रहते हैं. जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ईद इवेंट करवाते हैं. अच्छा. या जूनियर क्रिकेट भी करवाते हैं. अभी आपका ईद इवेंट गुजरा है? जी हाँ, अभी हम लोगों ने मिल्टन में हम लोग करवाते हैं ईद. दोनों ईद पे हमारा इवेंट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्केल पे होता है. तो हम उसकी जितनी भी कंटेंट पब्लिशिंग है मेन हम उस पर ही करते हैं. और उसका एक पार्ट है USCL जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ईयर ओवर ईयर. तो उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस है, एक तो ये है कि इवेंट नोटिफिकेशन, इवेंट को मैसेज को पब्लिक तक किस तरह से पहुंचाया जाए, तो हम उस पर फोकस होता है हमारा. प्लस ये कि हमारे जितने भी गेम्स होते हैं हम उसके स्टैट्स रखते हैं अपने पास, डेटा अपने पास मेंटेन रखते हैं. तो हम लोग स्कोर कार्ड जो है हम 2 टाइप की स्कोरिंग करते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड. तो अभी हमने ऑटोमेटेड पोर्टल में हमने इसका फीचर ऐड करवाया है जिसके थ्रू हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सबके प्रोफाइल, सबकी हिस्ट्री हम मेंटेन करते हैं. जितने भी हमारे फिक्सचर्स या मैचेस होते हैं सबकी हिस्ट्री होती है हमारे पास. तो वो डेटा हम लोग काफ़ी हमारे हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम कभी रिपोर्टिंग करते हैं कि प्लेयर परफॉर्मेंस हम एनालाइज करें या टीम परफॉर्मेंस एनालाइज करें, तो उसके लिए हम ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है. वेरी गुड. लेकिन यहाँ कुछ ऐप भी मौजूद हैं मेरे ख्याल से जो डिफरेंट अदर, आपको तो हारून भाई पता होगा, आप खेलते हैं माशाल्लाह. तो आपको डेटा अपने पास रखने की क्या जरूरत, मतलब इतना आप जो टेक्निकली काम करें, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ऐप्स अवेलेबल. नहीं भाई, इसमें समय सिलसिला ये है कि हमारे प्लान्स हैं फ्यूचर ग्रोथ के. हमारे पास दूसरे एवेन्यूज़ आ रहे हैं. अभी ऑफ कोर्स हम अभी इंशाल्लाह अभी 2-3 हफ्ते में अनाउंस करेंगे कि हमारे क्या क्या वेंचर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. नॉट लिमिटेड टू जो अभी हमारी लीग चल रही है, हम उसको मज़ीद ग्रो कर रहे हैं, बड़े स्केल पे ले जा रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डेटा एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. सॉरी हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन इंशाल्लाह यू विल सी बिग चेंज कमिंग सून. नहीं माशाल्लाह, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी USCL के बारे में बताया पिछले 3-4 सालों से जो चल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स गोना ग्रो एज वेल. सो मेराल भाई, मैं आपके पास आऊँगा. आप क्रिकेट खेलते हैं कि बिल्कुल आपने क्रिकेट को खैरबाद किया हुआ? नहीं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ. वैसे मैं खेलता हूँ मगर USCL में मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि अगर जो हमारी एक मेंटालिटी होती है कि ये इसकी टीम है और यही ऑर्गेनाइज कर रहा है तो जीतना भी इसी ने. राइट. तो इस वजह से जो है हम लोग
कोई भी हमारा जो भी मेरे साथ टीम में शामिल है, चाहे वो हमारे ग्राउंड में हो या ग्राउंड में ना हो, जैसे अज़हर भाई ग्राउंड में भी होते हैं और हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे होते हैं, तो उसमें भी जो है ये क्रिकेट नहीं खेलते अज़हर भाई, इवन के हारून भाई जो कि हार्ड बॉल खेलते हैं और वो एम्पायर भी हैं, मगर वो भी क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से, मगर USCL के अलावा खेल लेते हैं क्रिकेट। अच्छा अच्छा। तो आप वैसे पाकिस्तान में भी आप खेलते थे जो आप बता रहे थे? जी, मैं UBL में मैंने ट्रायल दिया था अंडर 19 का, तो उसमें नाम आ गया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर कनाडा जो है, कनाडा में आने के बाद अच्छा दो तो फिर इतने बिजी हो गए थे कि अब थोड़ा सा एग्जैक्टली वो लाइफ ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई। माशाल्लाह से ये टीम मिली है, तो उसमें फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो हारून भाई, आप जो डिफरेंट लीग्स में जो खेल रहे हैं राइट, तो उस लीग से जिसमें आप खेल रहे हैं, उस लीग से इस लीग को आप कैसे कंपेयर करते हैं प्रोफेशनली, और किस तरीके, क्योंकि वो डेफिनेटली आप हार्ड बॉल खेलते हैं, ये हार्ड बॉल नहीं है राइट। अदर देन दैट, आप जो द वे दे रन द लीग एंड द वे दे रन द लीग, आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं? आई थिंक देयर आर लॉट मोर सिमिलैरिटीज, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जो एक डिफरेंस है, इट्स जस्ट द बॉल। जो हम लोग जो हार्ड बॉल से खेलते हैं, इट्स ऑल लेदर बॉल, हार्ड बॉल जिसको कहते हैं, और इस लीग में USCL में इट्स अ टेप बॉल। सो आई थिंक दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदर देन दैट, जो USCL है, it is very competitive to any other hardball league that's out there. We are very professional. We are very up to date in terms of laws, in terms of technology, thanks to Azhar bhai, and in terms of the management skills, which is of course Mubashir bhai. So we are very very competitive, and we are very competitive and comparative. तो मेरे नज़र में तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय बॉल के, because we do provide a lot of entertainment. Good. All kind of entertainment. मुबशिर भाई मुझे ऑफ द एयर कह रहे थे कि कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं इनकी लीग में जो हार्ड बॉल खेलते थे, लेकिन नाउ दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम हार्ड बॉल बैक टू द सॉफ्ट बॉल। सो उसकी क्या वजह होती है? मतलब आपको भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पता होगा जो इस तरह से कर रहे हैं। The main difference is कि hard ball requires a lot of practice and a lot of commitment. I mean, अगर कोई प्लेयर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करता तो मैच में उसका जो आउटकम होता है बैट से या बॉल से, वो ऐसा होता है कि वो इट्स अ नाइटमेयर। तो whereas the tennis ball does not require a lot of practice, it requires a 5 to 10 minute warm up before the game and you are good to go. Hard ball के जो गेम्स मैं खेलता हूँ, it can last anywhere from 3 hours to 7 hours depending on कि मैं 20 ओवर खेल रहा हूँ या 50 ओवर खेल रहा हूँ। Whereas जो हम USCL में मैचेस करवाते हैं, they're done in 2 hours. तो जो भी फैमिली मेंबर्स या फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं जो कि क्रिकेट से लगाव रखते हैं या जिनको क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो, लेकिन हार्ड बॉल नहीं खेल पाते बिकॉज there is a cost to it, there is a time cost to it, वो हमारी लीग में आते हैं और they enjoy the atmosphere, they enjoy the professionalism that we provide them, we offer, और overall उनको बहुत मज़ा आता है। And this is what we are offering as an USCL team, as an USCL management, and as an USCL. Very good. तो अजहर भाई, आपका जो हमारी बात हो रही थी ऑफ द एयर, आप लोग बच्चों का भी जो है वो एक सेशन चल रहा था आपका USCL जूनियर, वो कैसा चल रहा है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहा है वो भी, और हम लोगों को तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है इस सिलसिले को शुरू किए हुए। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फैमिलीज़ की तरफ से मिल्टन में और अक्रॉस GTA पूरा में मिल रहा है। बल्कि हमारी भी रिसेंटली हमने एक्सपेंशन भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ईस्ट एंड पे भी हम लोग गए हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतना अच्छा टैलेंट है बच्चों में कि नहीं भाई, इसमें हमने लास्ट ईयर 2 बच्चों को प्रमोट भी किया था अपने इसमें मेन लीग में। अच्छा, वो बच्चे मेन लीग में आकर उन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा। इसमें भी हमारे पास कोचेस बहुत अच्छे हैं, थैंक्स टू हारून भाई, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द USCL जूनियर। हारून भाई, आप तो मल्टीपल जॉब कर रही है, क्या बैकबोन है क्रिकेट की हमारे। तो बहुत अच्छी कोचिंग वहाँ पे रही और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये हम लोग ये तकरीबन 6 हफ्ते 8 हफ्ते का सीज़न होता है हमारा, तो वो चलता रहता है, एक ऑनगोइंग एक प्रोसेस है। तो उसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट्स हम लोग लाते रहते हैं, जैसे एक सेशन पे हम फोकस करते हैं कोचिंग पे, एक सेशन पे फोकस करते हैं हम टीम बिल्डिंग पे, क्योंकि फोकस हमारा USCL जो है या USCL जूनियर सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, हमारे एक है कि हम एक सोशल प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करें, लोग अपना नेटवर्किंग इसमें क्रिएट करें। तो बच्चों के अंदर लीडरशिप स्किल्स को लाना और इंटरपर्सनल स्किल्स को लाना, तो वो
चीज़ों को हमारा फोकस होता है, तो उससे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी सिलसिले को हम जारी रखें। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के अपने USCL के बारे में, USCL की जूनियर कैसे बोला आपको ज्वाइन करें? आपका सीज़न मेरे ख्याल से किक ऑफ हुआ है लास्ट वीक, तो कैसे लोग ज्वाइन करना चाहें? क्या अगर उनको टीम के स्टेटस की अपडेट्स चाहिए तो हाउ डू दे डू इट एंड ऑल दैट? सो कुछ बताना चाहेंगे? हमारा पोर्टल है uscl.com, उस पर आप जाके हमारे जितने भी सीज़न के फिक्सचर्स हैं, जितने भी मैचेस हैं, आप वो लोग देख सकते हैं। उसके अंदर हमारे सारी टीम की परफॉर्मेंस भी है, और जितने भी प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं उनका प्लेयर्स को आप क्लिक कर सकते हैं, उनका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अगेन uscl.com है, वहाँ पे आप जाके फिक्सचर्स में जाके आप देख सकते हैं, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो अजहर भाई ने पोर्टल बताया है उसमें अभी हम जो है वो अगर जैसे जो मैच चल रहा होगा मिल्टन में, शेरवुड में, या कहीं पे भी हमारा मैच चल रहा होगा USCL का, वो वेबसाइट पे आप लाइव देख सकते हैं। अच्छा, लाइव स्कोरिंग चल रही है? बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। मेन पेज पे ही है। अच्छा, जी हाँ, uscl.com पे आप जाएंगे तो उसमें ऑन गोइंग मैचेस पे आप जाते हैं, वही एक सेगमेंट है मेन पेज पे, तो उसमें हम लाइव अपडेट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो माशाल्लाह, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रोफेशनली वाइज, यू गाइस आर देयर। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अजहर भाई, हारून भाई, मुबशिर भाई, USCL इंशाल्लाह इज वाइडली स्प्रेडिंग, सो थैंक यू सो वेरी मच। हमने USCL के मैनेजमेंट से बात की, उससे पहले हमने उमर भट्टी और हारून भाई से हमने वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बातें की, तो ये हमारा प्रोग्राम आज का हम कंक्लूड करते हैं। बिफोर वी कंक्लूड, हम हर प्रोग्राम के एंड में एक क्विज़ या एक वीडियो हम जो है वो नाजरीन तक पहुंचाएंगे। आपको उसका जवाब देना है, एंड इफ़ वी गेट द गुड आंसर और राइट आंसर, विल इनवाइट यू हियर इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट्स वॉच द वीडियो, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि वीडियो में आपको आंसर क्या देना है। तो लेट्स वॉच द वीडियो। तो वीडियो देखिए आपने, आपको ये बताना है कि ये कैच हुआ कि नहीं हुआ। आंसर हमें दीजिए इंशाल्लाह uscl@eventontario.com पे। इफ़ योर आंसर इज़ राइट, विल इंशाल्लाह इनवाइट यू हियर, हमारे साथ आप बात करेंगे एंड विल हैव अ गुड फन टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये प्रोग्राम। ये पहला प्रोग्राम था हमारा। अगले वीक इंशाल्लाह हमारे साथ USCL के कुछ और मेंबरान होंगे जो टीम्स में हैं, जो स्पॉन्सर हैं, और हम USCL की आपको अपडेट्स भी देंगे बेस्ड ऑन क्या मैचेस किस तरह से हुए और क्या पॉइंट्स टेबल रहा। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग Toronto 360 और USCL स्पोर्ट्स राउंडअप बाय नईम कियानी। नईम कियानी साइनिंग ऑफ। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals.